کا کام کیا ہے، وہ صبح کیا ہے، شام کیا ہے، نبی کے بیٹوں کا کام کیا ہے، یہ سست داموں پہ بیچتے ہیں زمین پہ جنت بنا بنا کر، یہ سست داموں پہ بیچتے ہیں زمین پہ جنت بنا بنا کر۔ اور فراز عرش کی عظمت سلام کرتی ہے، علی کے لال کو جنت سلام کرتی ہے، اور ان کے در سے جو بھی رکھا ہے امید کرم، ان کے در سے جو بھی رکھا ہے امید کرم، خود ان کو آ کر ضرورت سلام کرتی ہے۔ اور فقیروں سے ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا، فقیروں سے ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا، یہ سوکھے ندی سے بھی پانی مانگ لیتے ہیں، سوکھے ندی سے بھی پانی مانگ لیتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، سارے مفسرین نے ایسا ہی ترجمہ کیا، کچھ ملتا جلتا، کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے، لیکن لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور ہر کوئی یہی کہتا ہے، نماز میں بھی آپ یہی دعا مانگتے ہیں، نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ بھی یہی کہتے ہیں، امام صاحب یہی ہر روز 5 وقت نماز میں یہی کہہ رہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، گھروں میں تلاوت ہو رہی یہی بات کہی جاتی ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، قاری صاحب تلاوت کرے وہ بھی یہی کہہ رہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، دکانوں میں مکانوں میں چوک چوراہے پہ کہیں پہ بھی جب یہ الفاظ کہے جاتے تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور اللہ سے فرشتوں نے جب پروردگار نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی، آدم کی تخلیق کی تھی، اور اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا تھا کہ میں زمینوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک میں اور آیا تھا جس نے کہا تھا میں نہیں مانتا، اور وہ میں شیطان کی تھی، اور پھر شیطان نے کہا تھا کہ پروردگارم تیرے بندوں کو ہم صراط مستقیم سے بہکا دیں گے، صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نماز سے ہٹائیں گے، ہم روزے سے ہٹائیں گے، ہم حج سے ہٹائیں گے، ہم زکوٰۃ سے ہٹائیں گے، ہم تیرے بندوں کو تیری عبادت سے پھیر دیں گے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا، شیطان نے کہا تھا ہم تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے، تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے۔ تو آدم کی شریعت میں صراط مستقیم آدم، شیش کی شریعت میں صراط مستقیم شیش، یحییٰ کی شریعت میں صراط مستقیم یحییٰ، گویا کم و بیش 1,24,000 ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی اپنی شریعت کے صراط مستقیم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، صحابہ کے انجمن ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت بلال بھی حبشی ہیں، حضرت جابر و سلمان بھی ہیں، میثم و تمار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ عرض کرتے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار حضرت ابوبکر کو فرماتے ابوبکر بیٹھ جاؤ، حضرت ابوبکر بیٹھ گئے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا فرماتے ابوبکر بیٹھ جائیں، حضرت ابوبکر بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مسلسل حضرت ابوبکر بیٹھتے کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے ہوتے، یہ سوال 9 بار ہو چکا۔ اچانک میرے پیغمبر آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، ادھر مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ میرے مولا کائنات حضرت علی کریم اللہ وجہ پیغمبر دماد مصطفیٰ زہرا کے شوہر حسنین کے بابا مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں، پیغمبر منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ابوبکر سوال کیا تھا پیچھے کرو؟ حضرت ابوبکر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا صراط مستقیم کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم اپنے ابا سے دونوں ہاتھوں کو یوں باہر کر کے کہتے ھذا علی صراط مستقیم، واہ 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 کیا علی صراط مستقیم ہے۔ ابوبکر سنو، آدم کی شریعت میں آدم صراط مستقیم، شیش کی شریعت میں شیش صراط مستقیم، یحییٰ زکریا ابراہیم و اسماعیل یعقوب و ایوب کی شریعت میں وہ تمام نبی صراط مستقیم ہے۔ امت محمدی میں اگر کوئی صراط مستقیم ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، مولا کائنات زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔
वाह माशाल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं अगर सिराते मुस्तकीम देखना हो शरीयत मुहम्मदी में, दीन मुहम्मदी में सिराते मुस्तकीम देखना हो, हुजूर की उम्मत में सिराते मुस्तकीम देखना हो, शरीयत मुस्तफा में सिराते मुस्तकीम देखना हो तो कोई और नहीं है, अली के चेहरे को देखो, यही सिराते मुस्तकीम। अली सिराते मुस्तकीम है। अब अगर सिराते मुस्तकीम का पता लेना हो तो अली की चौखट से लेना है। कोई मुल्ला सिराते मुस्तकीम का पता नहीं दे सकता, कोई मुल्ला मुश्किल कुशा नहीं हो सकता है। अली को मुश्किल कुशा या तो खुदा ने बनाया है या मुस्तफा ने बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुश्किल कुशा कोई मुल्ला नहीं हो सकता, इसे याद रखें। मुश्किल कुशा जब भी हैं अली के बेटे होंगे। अगर मुश्किल कुशा देखना हो अली के बेटे इमाम हसन मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम हुसैन मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम सज्जाद मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम जाफर सादिक मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम अली रजा मुश्किल कुशा है, अली के बेटे इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी मुश्किल कुशा है। और करीब से देखना चाहो वही अली के बेटे गौसे आजम मुश्किल कुशा है, अली के बेटे गौसे आजम मुश्किल कुशा है, अली के बेटे गौसे आजम मुश्किल कुशा है। हिंदुस्तान में देखना चाहो गरीब नवाज मुश्किल कुशा है, निजामुद्दीन मुश्किल कुशा है, ख्वाजा फखरुद्दीन मुश्किल कुशा है, ख्वाजा सिराजुद्दीन मुश्किल कुशा है, ख्वाजा नसीरुद्दीन मुश्किल कुशा है, मखदूम कय्यर मुश्किल कुशा है, मखदूम की छोटा मुश्किल कुशा है, हुजूर अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल आइन मुश्किल कुशा है, हुजूर अकमलुल उलमा मुश्किल कुशा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुश्किल कुशा है। सिराते मुस्तकीम मौलवी नहीं होगा, वाह 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 वाह, जब भी होगा जिंदाबाद अली का जिंदाबाद। बेटा, अली का लाल होगा, अली की औलाद होगी, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमें ज़हन मखदूम सिमना ने दिया है, शरीयत का जाम हमने मखदूम सिमना के हाथों से पिया है, मार्फत का जाम मखदूम सिमना के हाथों से पिया है, हकीकत का जाम मखदूम सिमना के हाथों से पिया है, मोहब्बत का जाम मखदूम सिमना के हाथों से पिया है। शरीयत का रास्ता हमें मखदूम सिमना ने बताया है, तरीक़त का रास्ता मखदूम सिमना ने बताया है, मारिफत का रास्ता मखदूम सिमना ने दिया है। नमाज की दौलत हमने मखदूम सिमना के हाथों से लिया है, रोजे की दौलत हमने मखदूम सिमना के हाथों से लिया है, हज और ज़कात की दौलत हमने मखदूम सिमना के हाथों से लिया है, अली की मोहब्बत का जाम मखदूम सिमना के हाथों से पिया है, पंचतन की गुलामी का पट्टा मखदूम सिमना के हाथों से लिया है, अली की गुलामी मखदूम सिमना के हाथों से लिया है। वो जात मोहताज तारुफ नहीं जिनकी अज़मत बोले नबी नबी, जिनकी शरबत बोले नबी, जिनकी खलवत बोले नबी नबी, जिनका चलना बोले नबी नबी, जिनका बैठना बोले नबी नबी, जिनकी बातें बोले नबी नबी, जिनका गुफ्तार बोले नबी नबी, जिनका रफ्तार बोले नबी नबी, जिनका कलम बोले नबी नबी, जिनकी जिंदगी बोले नबी नबी, जिनकी बंदगी बोले नबी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत घुमाओ साहब, बहुत घुमाओ। यही वो जात है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। इस गुलाम के दामन में कुछ नहीं है, बाखुदा ये अंदाज ये शान हमारे नहीं होते, आका का आपकी खैरात में झोली में नहीं होता, जो कुछ है बुजुर्गों का सदका है, याले नबी का सदका है। इमाम मालिक फरमाते हैं आसमानों से जो बारिश होते हैं ना वो मेरे नबी के बेटों का सदका है। क्या कहने, ये चांद में चांदनी है ना वो नबी के बच्चों का सदका है, सूरज में रोशनी है ना नबी के बच्चों का सदका है, ये दरिया में रवानी है ना नबी के बच्चों का सदका है, ये दरियों में चटक नबी के बच्चों का सदका, ये फूलों में महक नबी के बच्चों का सदका, ये भौरों में गुनगुनाहट नबी के बच्चों का सदका, ये सितारों में झिलमिलाहट नबी के बच्चों का सदका, ये जमीनों से जो अनाज उगते हैं वो ज़हरा के बेटों का सदका। बेशक बेशक माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह। ये शान है बाखुदा, ये जाते बाबरकत, वाह वाह, मुहताजे तारुफ नहीं, बेशक बेशक, जिस दर से दुनिया को खैरात मिलती है, जिस दहलीज से दुनिया को भीख मिलती है, जिस दहलीज से जमाना परवरिश पा रहा है, जिनकी दहलीज के टुकड़े में जमाना पल रहा है, वो मखदूम की चौथा अगर किसी पागल को लात मार दे तो मुजद्दिद बना। वो
किसी पागल को लात मार देना तो मुजद्दिद बना दे, मट्टी को छू दे तो सोना हो जाए। बात है, वाह वाह वाह, ऐसे घराना है कसम खुदा की, वहां पे खून की बात है, खून बोलता है, जी बेशक। वो खून बूंद की बात है और कोई बात नहीं है। मसला है कि अली के घर का छोटा भी अली होता है, बड़ा भी अली होता है। ये नहीं देखते कि मासूम अली असगर इमाम हुसैन के गोद में करबला में थे तो कसम खुदा की जमीन पे लिटाया नहीं गया था, क्योंकि बहुत बड़ा अंदेशा था अगर अली असगर को करबला के रेत पे लिटा दिया जाता कहीं करबला में आगे ज़मज़म ना निकला। अली के घर का छोटा भी अली होता है, बड़ा भी अली होता है। इमाम सज्जाद 8वें इमाम फरमाते हैं वन अव्वल मोहम्मद व आखिर मोहम्मद वना औसतुना मोहम्मद, मेरा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, मेरा दरमियान भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो साइंस सरकार, तो फिर आप में कोई इमाम हसन है, कोई इमाम हुसैन है, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, कोई इमाम मोहम्मद बाक़िर है, कोई इमाम जाफर सादिक है, कोई मूसा काजिम है, आप अली रजा हैं, कोई तकी कोई नकी, इस तरह करके कई नाम हैं। आप फरमाते हम सब के सब मोहम्मद हैं। आखिर बात क्या है? तो 8वें इमाम अली रजा फरमाते हैं वो सामने क्या है? कहा सरकार कुरान लेकर आओ। कुरान लाया गया मौला के सामने। 8वें इमाम अली रजा फरमाते खोलो कुरान को। कुरान खोला गया, मौला ने पूछा बताओ ये कौन सी सूरत है? तो मौला ये सूरह रहमान है। ये कौन सी सूरत है? मौला ये सूरह मुज़म्मिल है। ये कौन सी सूरत है? मौला ये सूरह मुदस्सिर है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह आल इमरान है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह दहर है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह वाक़ियात है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह जिन है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह निसा है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह नबा है। ये कौन सी सूरत है? ये सूरह बनी इसराइल है। मौला ने फरमाया अब कुरान को फंद करो, ये क्या है? उसने कहा मौला ये कुरान है। तो मौला ने फरमाया सुनो, जब हम बिखरते हैं कोई अली होता है, कोई हसन होता है, जाद होता है, कोई बाकर होता है, कोई जाफर होता है, कोई मूसा काजिम होता है। हम जब बिखरते हैं तो 12 इमाम होते हैं, हम जब मिल जाते हैं तो कुरान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कुरान आयतों में बिखर जाए तो सैयदा हो जाए, अगर कुरान आयतों में बिखर जाए तो अली और फातिमा हो जाए, अगर कुरान आयतों में बिखर जाए हसन और हुसैन हो जाए, अगर कुरान आयतों में बिखर जाए गौस और ख्वाजा हो जाए, अगर कुरान आयतों में बिखर जाए ख्वाजा मखदूम हो जाए, अगर कुरान आयतों में बिखर जाए कोई अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन हो जाए, कोई हुजूर अकमल उलमा हो जाए, कोई अजमल उलमा हो जाए, यही आयतें जब मिल जाए एक मोहम्मद, ये जब मिल जाए तो मोहम्मद बन जाए। मेरा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, मेरा दरमियान भी मोहम्मद है। ये जो कुछ झोली में खैरात है नाकाओं का सदका है। गुलाम की हैसियत ही क्या है? कसम खुदा की हुजूर अजमल उलमा के सामने मुझे बोलने का शर्फ हासिल हुआ है और सरकार के सामने मैं बोल ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा विजदान नहीं कहता है, ये सरकार का फैज़ान है। ये मेरा इल्म का मामला नहीं है, कसम खुदा की ये इल्म का मामला नहीं है। यहाँ तो अल्फाज अदब से सर हुजूर के आगे खड़े, सर झुकाए खड़े हैं। मेरी औकात क्या है? वो सरकार इशारा दिए हैं, बस बोल रहा हूँ। हुजूर की निगाहे करम है, वो तमाम गुत्ती खुलते जा रही है, अल्फाज आते जा रहे हैं। ये जिसे चाहे वो अता कर दे, ये जिससे चाहे उसे बुलवा ले, अमा जिससे चाहे अगर पत्थर पे नजर डाल दे तो पत्थर बोल पड़े। शरफ मिला है तो शर्फ कबूलियत के साथ मिला है। ये सरकार है काम का, हुजूर का फैजान है जो कुछ है। बाखुदा ये दाना दाना मेरे हुजूर का है, खजाना मेरे हुजूर का है। अस्सलाम वालेकुम।